Okay, class. So next answer, main functions or the importance of the audit working papers. If they are asking about the functions, then also this only will be the answer. अगर importance भी पूछ रहे तो भी यही answer होगा. And what is a code which we have used over here? HCARE. Why I have taken it as a care? Because the audit working papers are the property of an auditor. So who needs to take care of the working papers? Auditor needs to take care of the working papers. So H care is a code word which will be used for this answer. So from first point from the H will be helpful for next year. Now, how these working papers are going to be helpful for the next year audit staff? See, because ना audit staff हमेशा rotating basis पर होंगे, या तो फिर ऐसा भी possible है ना कि जो previous year audit staff था वो ये साल नहीं है अभी. So the audit staff जो भी हमारे audit के part नहीं थे, those who were not the part of the audit of this previous year can know about the company as well as their internal operations through this working papers. So that is why this will be helpful फॉर द ऑडिट असिस्टेंट्स. ठीक है, ऑडिट स्टाफ जो लोग नहीं थे प्रीवियस ईयर, उनको ये साल का जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए दैट वुड बी ओके, वो इंफॉर्मेशन उन लोग यहाँ से ले सकते हैं. देन नेक्स्ट पॉइंट इज दैट यू कैन हैव अ चेक ऑन ऑडिट स्टाफ. सो हाउ कैन आई हैव अ चेक ऑन द ऑडिट स्टाफ? सी, एफिशिएंसी, यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि हाउ मच एफिशिएंट आवर ऑडिट स्टाफ इज. वी कैन जज द दिस देयर एफिशिएंसी एज वेल बाय रेफरिंग टू द वर्किंग पेपर्स, क्योंकि वो जो भी काम करेंगे वो सारा इसमें लिखते जाएंगे. एंड अकॉर्डिंगली वी कैन ट्रेन आवर ऑडिट स्टाफ. हम अपने ऑडिट स्टाफ को अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग भी दे सकते हैं. नेक्स्ट इज दिस असिस्ट इन द फाइनलाइजेशन. How it assists in doing this, finalizing the things. So working papers always helps the auditor in finalizing of the audit report, because अगर हमारे पास ऑडिट पेपर्स ऑलरेडी रेडी है तो हमारा जो डीले है वो डीले भी नहीं होगा. एंड वॉट एवर ऑल आर द रिक्वायर्ड डिटेल्स होंगे वो भी हमें इजीली वो फॉर्म में मिल जाएंगे, हमारे सारे फिजिकल डॉक्यूमेंट्स में मिल जाएंगे. सो दिस इज द रीजन वाई द ऑडिट वर्किंग पेपर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ लिंक बिटवीन द ऑडिट रिपोर्ट एंड द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स. बिकॉज अगर वर्किंग पेपर्स प्रॉपरली रेडी है तो यू कैन इजीली प्रिपेयर द ऑडिट रिपोर्ट एज वेल. You can easily give the comment on this basis. So even it helps us to assist in finalization of the work. Next point is it can be reference for the future. Now see, audit working papers हमेशा किसके पास रहने वाले? They are the properties of the auditor. ठीक है. So whenever the auditor want to refer this working paper, he can easily refer it up. If अगर कोई question, suppose अगर client कोई question कर रहा है अब at the end of the audit, अब देखो no one will be knowing कि मैंने 30 days के पहले क्या खाया है. If I ask Satakshi, Satakshi तूने 15 days पहले क्या खाया था, Satakshi will not remember it. द सेम वे इफ आई आस्क समवन कि आपने 1 मंथ के पहले कौन कौन से काम किए थे, कौन से डेट और टाइमिंग के साथ मुझे बताओ, अगर रिकॉर्ड उन्होंने नहीं लिखा है तो दे वोंट बी एबल टू आंसर इट अप. So the same way, if the client is asking any of the questions to the auditor, या तो कोई near future में अगर कोई problem हो गया तो he can refer the audit working papers and he can solve up the query as well. अगर कोई problem आए तो that problem can be easily solved because of this. Fifth point is it can be evidence, as it can be proved as a evidence in the court of law. See, audit working papers are an effective evidence I can say. हाँ, क्योंकि ऑडिटर को अगर अपने आप को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम द सूट विच इज बिन फाइल्ड बाय द क्लाइंट, मे बी बिकॉज उसका ऑडिटर का कुछ नेग्लिजेंस हो गया होगा, तो इफ द क्लाइंट इज इवन फाइलिंग आउट द सूट फॉर द ऑडिटर, देन दिस कैन बी this working papers can be shown as a evidence in the court of the law.
हम इसको इजीली एज अ एविडेंस बता सकते हैं. ओके क्लास, अपार्ट फ्रॉम दिस कोड इफ यू वांट टू अगर आपको ये 3 पॉइंट्स को मर्ज करके एक पॉइंट बनाना है, देन ऑल्सो यू कैन मेक इट अप. एंड यू कैन गिव द हेडिंग लाइक वी कैन सुपरवाइज एंड वी कैन रिव्यू एज वेल. अगर मेरा कोई सीनियर ऑडिटर है, उनको अगर देखना है कि कैसे काम हो रहा है, उनको सुपरवाइज करना है, तो इट विल ऑल्सो हेल्प देम टू डायरेक्ट द वर्क, टू सुपरवाइज द वर्क एंड टू रिव्यू द ऑडिट वर्क विच इज बिन डन बाय द ऑडिट स्टाफ. ठीक है, अगर मुझे कोई एविडेंस रिकॉर्ड करना है, तो वर्किंग पेपर्स विल बी प्रूव्ड एट इट. इवन इट गिव्स मी द अकाउंटेबिलिटी. असिस्टेंट फाइनलाइजेशन के साथ साथ में इवन यू कैन यूज वन ऑफ द पॉइंट. वेट, आई एम राइटिंग डाउन ओवर हियर, इट्स बेटर आई राइट डाउन. ना, किसकी ये वर्किंग पेपर्स जो है, ये मेनली किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर एंड ऑफ द ईच मेंबर्स एज वेल. तो उन जो भी काम हर एक मेंबर ने किया होगा, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको एक प्रॉपरली वर्किंग पेपर में मेंटेन करके रखे, सो दैट इवन इफ एज आई टोल्ड यू कि इफ यू वांट टू प्रूव दिस द वर्क इनटू द कोड, तो यू कैन इजीली प्रूव इट अप. ठीक है, इवन दिस हेल्प अस इन द इंस्पेक्शन एज वेल. हमें इंस्पेक्शंस में भी ये काफ़ी सारे काम आते हैं. वर्किंग पेपर्स ऑलवेज हेल्प अस फॉर द एक्सटर्नल इंस्पेक्शन पर्पज. लाइक अगर कोई रूल्स आया, कोई चेंजेस आए, तो वो सारे रूल्स में, लॉज में भी आप अगर इंस्पेक्ट करना है, तो थ्रू दिस ऑडिट वर्किंग पेपर्स यू कैन डू द सेम. ठीक है, सो दिस इज व्हाट द मेन फंक्शंस, और यू कैन से द इम्पोर्टेंट इज ऑल अबाउट. इट कैन बी प्रूव्ड. अगर इस ऑडिट वर्किंग पेपर्स प्रॉपरली प्लान्ड है, प्रॉपरली अगर आपने इसमें सब कुछ लिखा है, इफ ऑल द ऑडिट इज बिन अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स विच आर बिन लेड बाय द दिस ICAI, तो डायरेक्टली आप उसको लीगली भी प्रूव कर सकते हो, क्योंकि ये आपका एक एफिशिएंट, सॉरी, दिस इज योर सफिशिएंट एंड द अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड. ठीक है, बिकॉज on this basis only the auditor is going to give his report. Okay.